All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. As we have discussed within last lecture, within this lecture, today we will see sample MCQ questions, right? Related to Unit 4, Unit 3, and I think Unit 5 was also left. So we will do that thing. Today we will see those MCQ questions, right? So let's start. So the question is, the full form of ASCII is. There are four options, that is American Standard Character Information Internet, American Standard Code for Information Interchange, Australian Standard Code, Australian Standard Computer Information Internet, American Standard Code for Internet Intranet. So the answer is B, that is American Standard Code for Information Interchange. All right, let's see the next question. Okay, the cumulative addition of four binary bits, that is 1 plus 1 plus 1 plus 1, gives. Cumulative addition means आपको 1 plus 1 plus 1 plus 1 करना है within binary, right? So 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. और 4 हम binary में कैसे लिखेंगे? That is 1, 0, 0. So the answer is 1, 0, 0. Right? Next, the digital system usually operates on DES system. Again, I repeat, the digital system usually operates on DES system. Options are decimal, binary, octal, or hexadecimal. Again, I repeat, the digital system usually operates on DES system. Answer is decimal system. Next, the two-digit hexadecimal number which has the highest value is DES, which corresponds to DES decimal. टू डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर के जो हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता हो वो कौन सा है और वो डेसिमल में किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, मतलब उसका इक्विवेलेंट डेसिमल में कौन सा होगा. सी, टू डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर हमने देखा था कि हेक्साडेसिमल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड आफ्टर दैट इट हैज A to F, राइट. सो अगर हम वन डिजिट की बात करें तो वन डिजिट में हाईएस्ट नंबर कौन सा आएगा? F. और अगर हम टू डिजिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली टू डिजिट्स में हाईएस्ट नंबर आएगा FF. and FF is equivalent to 255 in decimal. So यहाँ पे आएगा FF, right? और यहाँ पे आएगा 255. So the answer is B. समझ में आया students? So the answer is B. That is FF and 255. NC character set is a DES bit character set. ये तो आपको याद होगा ही. हमने देखा था कि जो ASCII कैरेक्टर सेट होता है वो 7-bit कैरेक्टर सेट होता है. And then we have seen that NC character set is the extended version of ASCII character set. That's why, and within that we have also seen that NC character set is 8-bit character set. Students, 8-bit character set यहाँ पे लिखना है ना. Students, 8-bit character set. राइट आपको याद हो तो हमने देखा था कि ASCII कैरेक्टर सेट, राइट, वो 7-bit कैरेक्टर सेट था जिसके अंदर 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते थे. और उसके बाद हमने देखा था कि NC कैरेक्टर सेट वो ASCII कैरेक्टर सेट का एक्सटेंडेड वर्जन है और वो 8-bit कैरेक्टर सेट है, तो वो 256 कैरेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट करता है. दैट इज 0 to 255 उसके कोड होते हैं. ये हमने ऑलरेडी देखा था, राइट. सो द आंसर इज B, that is NC character set is 8-bit character set. All right, let's move on to next question. Full form of NC is, again, four options: American National Standard Institute, African National Standard Institute, American National Standard Internet, American National Standard Information. What will be the answer, students? What is the full form of NC?
So the answer is A, that is American National Standards Institute. अफ्रीकन तो वैसे भी नहीं आएगा, और हमने पढ़ा था कि ये जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है वो स्टैंडर्डाइज वे में हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, इसीलिए वो कोड्स डेवलप करके हमें देता है, राइट। नेक्स्ट, देयर आर डेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन ASCII। मैंने अभी अभी आपको बताया, ऑप्शन इज 128, 256, 64 या 512। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ASCII कैरेक्टर सेट 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ASCII कैरेक्टर सेट 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वो 7 बिट्स का कोड है। सो द आंसर इज ए, दैट इज 128, राइट। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, बेस मतलब क्या स्टूडेंट्स? बेस का मीनिंग ये होता है कि वो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम कितने नंबर्स, कितनी डिजिट्स, यूनिक डिजिट्स वो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अगेन आई रिपीट, बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम मीन्स कि वो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर हम कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिक, राइट। यूनिक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने ऑलरेडी देखा था दैट द नंबर डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। सो अगर हम ओवरऑल बात करें देन इट इज 0 to 15 एंड 0 to 15 दैट इज 16 numbers, right? So we can say कि hexadecimal number system का बेस क्या है? That is 16. So the answer is 16. That is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ASCII कोड इज 7-bit कोड फॉर, अगेन आई रिपीट, ASCII कोड इज 7-bit कोड फॉर, मतलब ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं? लेटर्स, दैट इज अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अदर सिंबल्स एंड ऑल ऑफ द अबाव। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि ASCII कैरेक्टर कोड अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर सकता है, डिजिट्स रिप्रेजेंट कर सकता है, थोड़े बहुत पंक्चुएशन मार्क्स एंड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ द above, because ASCII character set obviously it is a 7-bit code, लेकिन वो अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सम अदर सिंबल्स सारी चीजें वो रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Which of the following is not a positional number system? Again, I repeat, which of the following is not a positional number system? Positional number system में हमने already देखा था कि उसको, वो particular number system के अंदर हम positions decide कर सकते हैं, उसका radix होता है. It is also known as weighted number system, right? और ऑक्टल नंबर सिस्टम तो ऑब्वियसली पोजिशनल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है, एंड हेक्साडेसिमल नंबर भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। बट रोमन नंबर सिस्टम हमने ऑलरेडी देखा था, एंड आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था दैट इट इज पार्शियल, राइट। वो टोटली पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए, that is Roman number system, right? Next question. Which of the following is not an octal number? Again I repeat, which of the following is not an octal number? अगर आपको याद हो तो octal number system में 0 to 7 तक के digits होते हैं। Again I repeat, octal number system के अंदर 0 to 7 तक के digits होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें तो 0 to 7 के बीच में सारे डिजिट्स है, इसमें भी 0 to 7 के बीच में सारे डिजिट्स है, इसमें भी 0 to 7 के बीच में सारे डिजिट्स है। लेकिन ये जो है दैट इज 8AF, इसमें ये AF है, वो ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट नहीं करता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज सी, दैट इज 8AF इज नॉट एन ऑक्टल नंबर। क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Now next question is the binary equivalent of 56 is, 56 जो डेसिमल में है उसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
अगेन आई रिपीट, ये 56 जो डेसिमल में है उसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 56 का कन्वर्जन क्या होता है? दैट इज 11100। 56 राइट, उसका हम कन्वर्जन करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, आंसर इज 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आंसर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 0, 2 3 जा 6, remainder is 1, 2 1 जा 2, remainder is 1, and 2 0 1, और बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में हम लिखेंगे, so the answer is 111000. That is, the answer is B, right? A half byte is known as, again I repeat, a half byte is known as, option A is nibble, option B is data, option C is bit, and option D is half byte. Obviously half byte नहीं आएगा. Bit, that is a single bit, वो भी नहीं आ सकता. Data means it is a raw fact, so वो भी नहीं आ सकता. But half byte means 4 bits. Again I repeat, 1 byte is equal to 8 bits. So half byte is equal to 4 bits, and 4 bits is known as nibble. So the answer is A. Right? Clear हुआ students सबको? Next, which is typically the smallest? Bit, byte, nibble या फिर word? Which is the smallest? Again I repeat, bit, byte, nibble या फिर word? Byte मतलब तो 8 bits, nibble हमने अभी अभी डिस्कस किया, it is 4 bits, word means it can be of variable size. So the answer is bit, because bit is the smallest of these 4. That is, either it can be 0 or it can be 1, right? All right. Another question is, a computer store information internally in ASCII code. कंप्यूटर इंटरनली ASCII कोड के टर्म्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ट्रू या फिर फॉल्स? स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कंप्यूटर इंटरनली जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो बाइनरी में स्टोर करता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस. लेकिन ASCII कैरेक्टर कोड तो डेसिमल कोड है, दैट इज 0 1 2 से लेके 127 तक. तो कंप्यूटर ASCII कैरेक्टर कोड में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए उसे यूज करता है. कंप्यूटर इंटरनली जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो बाइनरी के टर्म्स में स्टोर करता है. दैट्स व्हाई विद इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. राइट? ऑलराइट. नेक्स्ट, what is the biggest binary number you can write with 5 bits? Again I repeat, which is the biggest binary number that you can write with 5 bits? मतलब अगर हम 5 bits consider करें, 3 4 and 5, तो biggest binary number कौन सा हो सकता है? अगर हम सारे places के ऊपर 1 लिख देंगे तो ये 5 bits का biggest binary number बनेगा. राइट? अब ये जो बिगेस्ट बाइनरी नंबर हमने बनाया 5 बिट्स का, उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 4 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 plus 2 30, and 30 plus 1 31. So the biggest binary number that can be written with the help of 5 bits is 31. So the answer is 31. All right. Next question. What is the resultant binary of decimal problem, that is 49 plus 1? What is the resultant binary of decimal problem, that is 49 plus 1? चलो करके देखते हैं. 49 plus 1 is equal to 50. अब हमें ये 50 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे 50, उसे हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 2 2 जा 4,
2 5s are 10, 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1, 2 6 are 12, 0, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 1, 2 0 1, right? So bottom to top लिखेंगे, that is 1 1 0 0 1 0, और आगे 2 0 लगाए हैं तो हम यहाँ पे 2 0 लिख देंगे. अब इसे अगर हम कंपेयर करेंगे, so the answer is D, right? So the answer is D, that is 49 plus 1, that is 50, और 50 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 1 1 0 0 1 0. So the answer is D, right? Next, the radix of octal number system is, octal number system के अंदर हम यूनिकली कितने डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडियक्स या फिर बेस बोल सकते हैं, वो क्या है? Obviously the base या फिर रेडियक्स of octal number system is 8. So the answer is A, right? Next, 3 multiplied by 10 raised to 1 plus 7 multiplied by 10 raised to 0 is equal to, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ओके, आंचल ने आंसर दिया है, दैट इज 37, दैट इज ऑप्शन बी. कोई और बता सकता है कि अगर हम ये सम को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चलो करके देखते हैं. 3 multiply by 10 raised to 1 plus 7 multiply by 10 raised to 0. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 multiply by 10 raised to 1, anything raised to 1 is 10 itself, that is the number itself, plus 7 multiply by anything raised to 0 is 1. So यहाँ पे हम करेंगे, that is 3 multiply by 10, that is 30, plus 7 multiply by 1 is 7. So the answer is 37. So हमारे ऑप्शन में आंसर क्या आएगा? That is B, 37. Right? So the answer is B, that is the option B. Right? Next, each octal digit converts to dash binary digits. Each octal digit converts to dash binary digits. अगर हम इंडिविजुअल ऑक्टल डिजिट्स की बात करें तो वो कितने बाइनरी डिजिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे स्टूडेंट्स? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम ओवरऑल 0 to 7 तक के डिजिट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? और ये 7, राइट, उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? 1 1 1, दैट इज हमें हाईएस्ट नंबर मिल जाता है, राइट? सो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम ऑक्टल डिजिट को हम कन्वर्ट करेंगे विद इन बाइनरी डिजिट्स तो वी नीड 3 बिट्स. अगेन आई रिपीट, वी नीड 3 बिट्स, दैट इज 3 बाइनरी डिजिट्स टू रिप्रेजेंट वन ऑक्टल डिजिट, राइट? सो द आंसर विल बी डी, दैट इज 3. ऑलराइट, लेट मी रिपीट. हमने देखा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज फ्रॉम 0 to 7. अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 to 7 डिजिट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमें 7, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू विच कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, अगर हमें इसे डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें कितने बिट्स चाहिए? अगर हम 3 times 1 लिखेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 7, मीन्स वी नीड 3 बिट्स. We need 3 binary digits to represent 7, that is the maximum value which can be represented within octal number system, right? So हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें octal bit को convert करना है within binary digit, then we need 3 binary digits. तो हम octal number system की कोई भी digit को हम convert कर सकते हैं. Clear हुआ? Next, decimal number system is an example of positional number system. True or false? Again, I repeat, decimal number system is an example of positional number system. True or false?
हमने ऑलरेडी देखा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम आर द examples of positional number system. So the answer is true, right? So the answer is true. All right. Next, अभी जो हमने जैसे ऑक्टल का देखा वैसे ही ये आंसर क्वेश्चन है, दैट इज ईच हेक्साडेसिमल डिजिट कन्वर्ट्स टू डैश बाइनरी डिजिट्स. Again, I repeat, each hexadecimal digits can convert to dash binary digits. So, let's see. हमने देखा कि हम hexadecimal number system के अंदर 0 to 9 and A to F इतने यूनिक नंबर ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज टोटल इज 16. राइट, टोटल कितने डिजिट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 16 डिजिट्स हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? f, right? f is the highest value of any digit which can be represented within hexadecimal number system. और अगर हमें f को रिप्रेजेंट करना है, राइट, विद इन बाइनरी, तो हमें कितने बिट्स चाहिए? f मतलब 15, राइट, f मतलब 15. तो अगर हम उसको हम कन्वर्ट करने की ट्राई करें, देन इट इज 1 2 4 8. 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15. मतलब हमें कितनी बाइनरी डिजिट्स चाहिए? 4 बाइनरी डिजिट्स चाहिए, राइट? हमें अगर कोई भी हेक्साडेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करना है विद इन बाइनरी डिजिट्स, तो हमें कितनी बाइनरी डिजिट्स चाहिए? 4 बाइनरी डिजिट्स चाहिए. सो द आंसर इज 4. So the answer is 4. Let me explain once again. हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करके या फिर हेक्साडेसिमल डिजिट का यूज करके जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 15, दैट इज f. क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 एंड A to F हम डिजिट यूज कर सकते हैं. और f किसे रिप्रेजेंट करता है? 15 को रिप्रेजेंट करता है. और अगर मुझे 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स चाहिए? ऑब्वियसली मुझे 4 बाइनरी डिजिट्स चाहिए अगर मुझे 15 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो. सो वी कैन से कि अगर हम हेक्साडेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं विद इन बाइनरी डिजिट्स, देन पर 1 डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल, राइट, वी नीड 4 बिट्स, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर हुआ? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. Now next question is the common resolution of computer screen is, there are 4 options, 800 by 600 and 1024 by 768, या फिर 600 by 800 and 1024 by 768, या फिर 800 by 600 and 768 multiply by 1024. Which is the correct answer? अगर आप सारे ऑप्शंस देखोगे स्टूडेंट्स, वो 800, 600, 1024 और 768 से ही बने हैं. But over here we need to consider the correct combination, and the correct combination is 800 by 600 and 1024 by 768. These are the two common resolutions of computer screen के जो सारे computers के अंदर हम set कर सकते हैं, right? That is 800 by 600 and 1024 by 768. So the answer is A. Next. The sharpness and clarity of print of a printer is determined by dash of the printer. प्रिंटर का यूज करके हम कोई भी कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं तो उसकी शार्पनेस कितनी है, उसकी क्लैरिटी कितनी है, अगर हमें वो डिटरमाइन करना है तो हम किसके ऊपर से वो डिटरमाइन कर सकते हैं? कलर के ऊपर से डिटरमाइन कर सकते हैं, रिजोल्यूशन के ऊपर से डिटरमाइन कर सकते हैं, लिक्विड के ऊपर से डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर बाइट्स के ऊपर से डिटरमाइन कर सकते हैं. आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? आंसर विल बी रिजोल्यूशन. बिकॉज कलर की अगर हम बात करें तो सारे प्रिंटर का यूज करके हम कलर्स तो प्रिंट नहीं कर सकते. लिक्विड वो तो कुछ होता ही नहीं है, राइट? बाइट्स इज जस्ट यूज टू रिप्रेजेंट, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके हम जो डिजिट्स नंबर्स बनाते हैं उसका, राइट?
लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हम प्रिंटर का यूज करके कोई भी प्रिंट करते हैं, कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं, तो उसके अंदर हम उसका रिजोल्यूशन चेक करते हैं कि पर डॉट मतलब 1 इंच के अंदर हम कितने डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन. सो अगर हमें प्रिंट की क्लैरिटी और शार्पनेस चेक करनी है, देन इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन, राइट. नेक्स्ट, what is output device? Which option is correct? It allows data to be output from a computer. It allowed to print the data. It allowed to store the data. It allowed to read internal data for processing. Answer क्या आएगा? Only one, 1 and 2, 1, 2 and 4 या फिर only 3? Answer क्या आएगा? Obviously the answer is आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम कंप्यूटर में से आउटपुट दे सकते हैं. सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली द आंसर. सेकंड, हमने देखा था कि प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. इट मीन्स वो हमें डेटा प्रिंट भी करने देता है, राइट. लेकिन आउटपुट डिवाइस डेटा स्टोर नहीं करता है और आउटपुट डिवाइस डेटा रीड भी नहीं करता है प्रोसेसिंग करने के लिए. दैट्स व्हाई द आंसर इज 1 and 2. So the option is B is the correct answer. Because output device क्या करता है? वो कंप्यूटर में से आउटपुट देता है और हम डेटा प्रिंट भी कर सकते हैं with the help of printer, right? So 2 options are correct, that is 1 and 2. So the answer is B, right? So next question is, resolution of printer is measured in. आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? अभी अभी हमने डिस्कस किया. Resolution of the printer is measured in. अभी अभी हमने डिस्कस किया, राइट, कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट्स पर इंच, राइट. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हम प्रिंट कर सकते हैं, उसके ऊपर से हम डिटरमाइन करेंगे कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन क्या होगा. सो द आंसर इज डी, दैट इज डॉट्स पर इंच. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dot matrix printer come in 2 sizes, column dash column printer and dash column printer. कौन से 2 साइज के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं? दैट इज 80 कॉलम एंड 132 कॉलम, 132 कॉलम और 150 कॉलम, 90 कॉलम एंड 150 कॉलम, या फिर 100 कॉलम एंड 100 कॉलम. क्या आ सकता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? कौन सी 2 साइज में आता है? Yes, good. Good. We have already discussed that dot matrix printer comes in 80 column printer and 132 column printer. मतलब एक लाइन के अंदर हम 80 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है. और विद इन वन लाइन वी कैन प्रिंट 132 कैरेक्टर्स, ऐसे भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं. सो द आंसर इज 80 and 132. That is option A. All right. Next, among the options, which of the following computer input device enable video conference? मतलब माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन या फिर वेबकैम, किसका यूज करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं? Which is an input device? Obviously, microphone, it is used to give audio as an input. Digital camera, obviously that is not the thing that is present with the computer. Voice recognition, मतलब जो हम बोलेंगे वो recognize करने के लिए, तो obviously उसमें वीडियो नहीं आएगा. So the answer is D, that is webcam, because webcam का यूज करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को enable कर सकते हैं and webcam is an input device, right? So the answer is webcam, that is the option D. Next, which of the following is widely used in academic result testing? Can I repeat? Which of the following is widely used in academic result testing? MICR, that is magnetic ink character recognition, no. POS, point of sale, no. OCR, optical character recognition, no. But OMR, that is optical mark reader, obviously it is used to check MCQ type questions. So the answer is OMR, that is optical mark reader. Next,
Device that enter information and allow you to communicate with the computer are called, मतलब ऐसी डिवाइसेस की जो हमें इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए यूजफुल होते हैं और उसका यूज करके हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. दैट टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या फिर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. Obviously, the answer is B, that is input device, because input device का use करके हम information enter कर सकते हैं और हम computer के साथ communicate कर सकते हैं. So the answer is B, that is input devices. Alright, let's see the next question. A disadvantage of laser printer is that, laser printer का disadvantage कौन सा है? First option, it is quieter than an impact printer. Second option, it is very slow. Third, output is of lower quality. And D, none of the above. लेसर प्रिंटर का इसमें से डिसएडवांटेज कौन सा है? ऑब्वियसली लेसर प्रिंटर क्वाइटर प्रिंटर है, उसमें से आवाज नहीं आती है बिकॉज इट इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. सो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा नहीं. सेकंड, इट इज वेरी स्लो. नो, because laser printer is a page printer, it can print whole page at a time. उसका आउटपुट भी हायर क्वालिटी का होता है बिकॉज उससे जो कैरेक्टर प्रिंट होते हैं वो हायर रेजोल्यूशन के होते हैं. सो द आंसर इज डी, नन ऑफ द अबाउ. मतलब ये जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, वो कोई भी लेसर प्रिंटर का डिसएडवांटेज नहीं है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following can be output by a computer? कंप्यूटर का यूज करके हम कौन सी चीजें आउटपुट में दे सकते हैं? ग्राफिक्स, वॉइस, टेक्स्ट एंड ऑल ऑफ दिस. Obviously the answer is D, that is all of this, because हम कंप्यूटर का यूज करके ग्राफिक्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एज अ वॉइस भी इनपुट दे सकते हैं अगर स्पीकर अटैच किया है तो, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हम आउटपुट दे सकते हैं. दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस. डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस. कौन से टाइप का डिवाइस है डॉट मैट्रिक्स? Obviously the answer is B, that is printer, because dot matrix is a printer. Scanner नहीं है, keyboard नहीं है, mouse नहीं है. Obviously we have seen already कि dot matrix is a printer कि जिसका यूज करके हम हार्ड कॉपी के टर्म्स में आउटपुट दे सकते हैं. नेक्स्ट, www stands for, what is the answer? So the answer is World Wide Web. हमने ऑलरेडी देखा था कि www का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. सो द आंसर इज बी, वर्ल्ड वाइड वेब. ऑलराइट, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ हार्डवेयर? मॉडेम, राउटर, ब्लूटूथ या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑब्वियसली मॉडेम, राउटर एंड ब्लूटूथ आर द हार्डवेयर की जिसका यूज करके हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, right? But Microsoft Word is an application software which is not the hardware. So the answer is D, that is Microsoft Word. Next, DES is the exchange of computer stored messages by telecommunication. Download, email, upload या फिर all of this. कौन सी चीज ऐसी है कि जो हम कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? डाउनलोड मतलब हम इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं वो, अपलोड मतलब हम कोई चीज अपलोड करते हैं वो. लेकिन ईमेल इज द मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सचेंज कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस, राइट? सो द आंसर इज ईमेल, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द इंटरनेट इज डैश. इंटरनेट क्या है? एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, a communication system for Indian government, a large network of networks या फिर all of the above. Obviously इंटरनेट इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है.
वो ऐसी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट यूज करती हो, बट इंटरनेट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का यूज करके जो नेटवर्क बनाया गया है, दैट इज नोन एज इंटरनेट. सो द ऑप्शन इज सी, राइट. नेक्स्ट, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, या फिर विंडो इंडेक्स फंडामेंटल इन, या फिर वायरलेस फील्ड, या फिर वायरलेस फर्म. Obviously, we have already seen the full form of Wi-Fi is wireless fidelity. So the answer is option A. Next. In the following, which one is not a web browser? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर विंडोज एक्सपी. Windows XP is an operating system. It is not a web browser. Google Chrome, Firefox, and Internet Explorer are the web browser. So the answer is D, that is Windows XP, which is not the web browser. Right? Next, web browser is useful for. हम वेब ब्राउजर को किसके लिए यूज करते हैं? वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज करते हैं, कोई चीज डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं, ईमेल करने के लिए भी वेब ब्राउजर का हम यूज करते हैं. मतलब हम ये 3 ऑप्शंस जो यहाँ पे लिखे हैं वो सारी चीजें करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं. दैट्स व्हाई आवर आंसर फॉर दिस एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. राइट. नेक्स्ट, What is the full form of URL? That is URL stands for, ऑप्शन कौन कौन से है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्सिटी रिसर्च लोकेटर, या फिर none of the above. Obviously, we have already seen the answer is A, that is Uniform Resource Locator. Full form of URL is Uniform Resource Locator. All right. Next. This is a physical location where people may obtain internet access, typically using Wi-Fi technology. मतलब ऐसी फिजिकल लोकेशन के जिसका यूज करके पीपल इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होता है. लिंक, ऑब्वियसली वो तो 2 पेज को लिंक करने के लिए काम आता है. एड्रेस बार के जिसके अंदर हम यूआरएल लिखते हैं. बुकमार्क मतलब अगर हमें फ्यूचर यूज के लिए कोई पेज को सेव करना है, दैट इज द थिंग. बट हॉटस्पॉट इज द फिजिकल लोकेशन की जिसका यूज करके कोई भी पीपल इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. राइट. सो द आंसर इज सी, दैट इज हॉटस्पॉट. Next, DES is a technology that uses remote servers on the internet to store, manage, and access data online rather than local drives. आंसर क्या आएगा? राउटर, वो तो 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम आता है. यूआरएल, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कोई भी वेबसाइट का यूआरएल. डोमेन, नो, दैट इज नॉट द टेक्नोलॉजी के जिसका यूज करके हम स्टोर, मैनेज या फिर डेटा एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन. ऑब्वियसली द आंसर इज ए, दैट इज क्लाउड. बिकॉज हमने देखा है कि क्लाउड ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर रिमोट सर्वर के ऊपर इंटरनेट का यूज करके हम हमारे डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, दैट इज फ्रॉम एनी प्लेस, एनी लोकेशन. राइट. सो द आंसर इज ए, दैट इज क्लाउड. ऑलराइट. So students, this is the end of sample MCQ questions, right? So now अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे.